Good morning students. Now in today's lecture we will discuss about the grouping of cells. Okay. Cells are connected in series, cells are connected in parallel and cells are connected in mixed combination, that is series and parallel. Okay. तो वहां पर इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, देन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा एंड करंट की वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं. ओके. सो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इसमें नंबर 1 series grouping of cells. Now we know that this is the symbol of cell, positive terminal, negative terminal. Okay. E EMF of the cell and R is internal resistance of the cell. Suppose n number of identical cells, okay, connected in series. देखिए, this is first cell, then second cell, and so on, nth number cell. So there are n cells. There are n cells connected in series, मतलब one after another. That means positive terminal of second connected to negative. Okay. Positive terminal of third connected to negative terminal of second, and so on. So this is series combination. अब इसमें करंट कितना होगा उससे पहले देखिए एक जनरल फॉर्मूला भी पता है, I is equal to E divided by R plus small r. This is the value of current passing through a cell. मतलब E EMF of cell, R external resistance, small r internal resistance of the cell, and this is the equation for current. Okay. अगर n आइडेंटिकल सेल्स हम कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में तो फिर उसका E इक्विवेलेंट कितना होगा. ओके. तो E इक्विवेलेंट मतलब पोटेंशियल मतलब EMF की एडिशन होगी. अब n नंबर ऑफ सेल्स है मतलब E इक्विवेलेंट कितना होगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NE. ओके. सपोज यहाँ पर हमें पता है पेंसिल सेल अगर होता है तो उसका EMF कितना होता है जनरली 1.5 वोल्ट. अगर 2 सेल्स हम कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन तो 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3 वोल्ट. ओके. अगर यहाँ पर हम 4 सेल्स कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, चारों EMF की एडिशन मतलब 6 वोल्ट. ओके. वैसे यहाँ पर n सेल्स है तो E इक्विवेलेंट क्या होगा, NE अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट. अब स्मॉल r इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंसेस. ओके. तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, NR. ओके. सो करंट की वैल्यू अब क्या होगी यहाँ पर देखिए, करंट वी नो दैट flows from positive to negative if this plug key is closed. Okay. So this is the direction of current. So current यहाँ पर क्या होगा फिर E equivalent upon R मतलब external resistance plus equivalent of internal resistance is equal to NE divided by R plus NR. This is equivalent diagram of this circuit diagram. Okay. So E equivalent NE, internal resistance का equivalent NR and this is external resistance. Okay students, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है. नो अब देखिए यहाँ पर अगर NR फर्स्ट कंडीशन क्या है, if NR लेस देन R मतलब इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निग्लिजिबल है कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये टर्म हम निग्लेक्ट कर देंगे, है ना. तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देन I is equal to NE divided by R. ओके. सेकंड, if NR greater than R अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बहुत ज्यादा होता है and that is greater than एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, तब करंट का फॉर्मूला क्या होगा देखिए, तब हम R यहाँ पर निग्लेक्ट करेंगे, राइट. तो I is equal to NE divided by NR.
तो यहाँ पर n get cancel. So I is equal to E divided by R. So this is the current passing through each cells. Okay. Now third condition यहाँ पर, if in series combination of n cells, यहाँ पर कितने cells series combination में n cells, okay, comma p cells are reversed. अब p cells are reversed का मतलब क्या होता है? Suppose this is first cell plus minus, this is second cell plus minus, okay, this is third cell plus minus, and अगर fourth cell हम reverse करते हैं minus plus, this is called cell connected in reverse, okay. अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, suppose इसका इक्विवेलेंट है यहाँ पर 1.5 EMF, यहाँ पर EMF 1.5 और इसका भी EMF 1.5 होगा, लेकिन इक्विवेलेंट क्या रहेगा यहाँ पर देखिए. अब ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन एंड असिस्टिंग ईच अदर, मतलब नेगेटिव कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ नेक्स्ट, ओके, एंड सो ऑन. तो इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या होगा? 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, दिस इज 4.5, एंड नाउ दिस फोर्थ सेल इज रिवर्स्ड, मतलब नेगेटिव ऑफ फोर्थ सेल कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ थर्ड सेल. तो यहां पर क्या होता है? EMF सबट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज दैट अपोज द वैल्यू ऑफ करंट, ओके. तो यहां पर EMF सबट्रैक्ट होगा, मतलब 3 टाइम्स 1.5 माइनस 1 टाइम्स 1.5, ओके. तो ये कितना होगा? 2 टाइम्स 1.5. सो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? 3 वोल्ट, ओके. नो, अगर n सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज वन आफ्टर अनदर, जिसमें p सेल्स रिवर्स हो गए, जैसे सपोज 100 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एज शोन इन फिगर 100 सेल्स आर कनेक्टेड, ओके. अब उसमें से हम क्या करेंगे? 25 सेल्स रिवर्स कर देंगे, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 100 और रिवर्स सेल कितने हो गए? 25. मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में असिस्टिंग ऑर्डर में कितने सेल्स हो गए? 100 माइनस 25, दैट इज 75. मतलब 75 सेल्स एज इट इज कनेक्टेड है और 25 सेल्स रिवर्स हो गए, मतलब 75 प्लस 25 टोटल 100 सेल्स हो गए, राइट स्टूडेंट. तो यहां पर E इक्विवेलेंट क्या होगा? जो 75 सेल्स है उनकी एडिशन होगी, उसमें से माइनस जितने रिवर्स सेल होंगे उनका EMF सबट्रैक्ट होगा, राइट. तो यहां पर देखिए n सेल्स टोटल है, p सेल्स रिवर्स, मतलब इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कितने सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी? n माइनस p, उनकी एडिशन होगी. तो n माइनस p इंटू E माइनस कितने सेल्स रिवर्स हो गए? p सेल्स, तो p इंटू E, ओके. तो यहाँ इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो n E माइनस PE माइनस P, दैट इज n माइनस 2 टाइम्स P, E कॉमन निकलेगा, तो E इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? n माइनस 2PE, ओके. अगर सेल्स हम रिवर्स करते हैं लेकिन उनका इंटरनल रेजिस्टेंस तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ही रहेगा ना, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा फिर? n टाइम्स स्मॉल r. सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू nr, ओके. अब यही फार्मूला यूज करना है हमें, जनरल फार्मूला यहाँ पर, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट. तो E इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पर? n माइनस 2p इंटू E, n minus 2p into E divided by R plus R equivalent nr. So this is the formula for current. When out of n cells, p cells are reversed and connected in series combination. Right? Now number 4. If unidentical cells are connected in series combination. देखिए ये कंडीशन कौन सी थी? Identical n cells are connected in series combination. अब अनआइडेंटिकल सेल्स हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कंसीडर करना है, ओके. मतलब EMF होगा E1, E2, E3 अप टू En, और उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस क्या होंगे? R1, R2, R3 अप टू Rn. अब ऐसे सिचुएशन में, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन में E इक्विवेलेंट क्या होगा? सब EMF की एडिशन. तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस डैश डैश En, that is summation of EI, okay. And internal resistance भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उनकी भी एडिशन हो जाएगी.
R equivalent is equal to R1 plus R2 plus dash dash Rn is equal to summation Ri। अब यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, R is equal to E equivalent divided by R plus R equivalent, तो summation ER divided by R plus summation Ri। Okay student, so this is all conditions we have discussed in a series grouping of cells। तो इस तरह के MCQs या फिर न्यूमेरिकल्स हायर लेवल पर पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट्स हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। नाउ सेकंड, दिस इज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखिए एज शोन इन डायग्राम, EMF E, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, दिस इज वन सेल। नाउ सच सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो सपोज m number of cells, m cells are connected in parallel। ओके देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने सिंबल क्या लिया था, n सेल्स, पैरेलल के लिए हम यहाँ पर m सेल्स ये सिंबल लेंगे, ठीक है। नाउ एंड ऑल सेल्स आर कनेक्टेड बिटवीन दिस टू कॉमन पॉइंट्स, लेट दिस पॉइंट्स आर a and b, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड टू कॉमन पॉइंट a and negative terminal of each cell are connected to common point B, and these two common points are connected to plug key and external resistance R। अब अगर हम प्लग की क्लोज कर देते हैं यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लेट दैट करंट इज I। ओके नाउ अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेट दिस करंट इज I1 I2 and this current is IN। okay, now current passes through this, again by combining that total current becomes I। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। now EMF of each cell is same, मतलब आइडेंटिकल सेल्स यहाँ पर कनेक्टेड है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका सेम है, मतलब करंट पासिंग थ्रू ईच सेल मस्ट बी सेम, I1 is equal to I2 is equal to up to IN। ओके नाउ अब यहाँ पर क्या करना है, हमें करंट की वैल्यू निकालनी, तो बेसिक यही फार्मूला यहाँ पर यूज करना है, I is equal to E equivalent divided by R plus इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब पोटेंशियल मतलब उसका EMF ऑफ द सेल ओके कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें पता है इन सीरीज पोटेंशियल की एडिशन होती है, करंट सेम रहता है ना, हर एक सेल में से पास होने वाला करंट सेम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब यहाँ पर हम EMF ऑफ द सेल कैसा रहेगा, फिर सेम रहेगा। तो E इक्विवेलेंट क्या होगा, E होगा, देन R प्लस, अब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r यंग टाइम्स, दे आर कनेक्टेड पैरेलल। अब पैरेलल मतलब क्या होता है, देखिए 1/r इक्विवेलेंट ओके इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस डैश डैश 1/r, so 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू m टाइम्स 1/r, तो r इक्विवेलेंट क्या होगा, फिर r by m है ना, तो प्लस r by m। so this is the equivalent circuit diagram of this parallel grouping of cells। तो यहाँ पर E equivalent E होगा and R equivalent होगा R by m। this is the external resistance, okay, this is plug key when closed, so this is the equation for current। अब इसमें कंडीशन देखिए, अगर R by m की वैल्यू लेस देन R हो जाती है, मतलब ये टर्म हम निगलेक्ट करेंगे, तो करंट के लिए फार्मूला क्या होगा, फिर E by R। नाउ अगर R by m की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, देन R के लिए फार्मूला क्या होगा, फिर E डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर हम कैपिटल R की वैल्यू निगलेक्ट कर देंगे, E डिवाइडेड बाय R by m, तो m ऊपर चला जाएगा, सो m E डिवाइडेड बाय R। ओके स्टूडेंट, नाउ डिसिमिलर सेल्स इन पैरेलल, मतलब अगर ये आइडेंटिकल सेल्स है तो डिसिमिलर मतलब अनआइडेंटिकल सेल्स अगर कनेक्ट होते हैं पैरेलल, तो उनके लिए फार्मूला क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर हम दो सेल्स कनेक्ट करते हैं
जिनका ईएमएफ E1 और E2 है, पैरेलल कनेक्टेड, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, ओके, और उसका जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब ऐसे कंडीशन में E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, देखिए, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब यहाँ पर स्मॉल R1 R2 का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, E1 E2 मतलब EMF ऑफ दिस टू सेल्स। नाउ एज R1 एंड R2 इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर से R इक्विवेलेंट के लिए इक्वेशन क्या होगा, फिर 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, that is equal to R1 plus R2 divided by R1 R2। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, R equivalent is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2, ओके। तो करंट के लिए वही फॉर्मूला E equivalent divided by R plus इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, E equivalent E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 whole divided by R plus R equivalent R1 R2 divided by R1 plus R2, ओके। अब यहाँ पर ये इक्वेशन कैसे तैयार हुआ है, तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर जो हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लेने वाले हैं, तो उससे ये इक्वेशन हम तैयार कर सकते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ मतलब वोल्टेज लॉ है, ओके, सो उसका एप्लीकेशन करके हम ये स्टेप यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके। नाउ अब सीरीज कॉम्बिनेशन होगी, okay, this is parallel grouping of cells। now number 3 mixed grouping of cells, जिसमें हम क्या करने वाले, देखिए, n cells are connected in series, okay, first cell, second cell, third cell and so on, this is nth cell, so this is series combination। तो एक रो कंप्लीट हो जाता है, ओके, ये सेकंड रो जिसमें n cells होंगे, वैसे करते करते this is nth number of रो, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो अप टू m, ओके। n और m का मीनिंग क्लियर कीजिए पहले। n सेल्स मतलब एक रो में कितने सेल्स हम कनेक्ट करने वाले, n सेल्स, 1 2 3 4 अप टू n, ओके, आइडेंटिकल सेल्स है यहाँ पर। नाउ और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका r, स्मॉल r है। अब एक रो कंप्लीट हो गया, नाउ दिस इज सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे यहाँ पर mth रो होगा, ओके। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर, m रोज, एंड एक रो में कितने सेल्स होंगे, n सेल्स होंगे। सो दिस इज नोन एज मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। डायग्राम क्लियर अब, ओके। अब यहाँ पर वही करंट के लिए फार्मूला हमें तैयार करना है और कुछ कंडीशंस यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो करंट का जनरल फार्मूला क्या है, I is equal to E equivalent divided by R plus इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर E इक्विवेलेंट क्या होगा, अब n सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, n सेल्स है तो n टाइम्स EMF की एडिशन होगी। सो एक रो में देखिए E इक्विवेलेंट कितना होगा, NE, क्लियर। अब ऐसे m रो कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, और हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता, मतलब यहाँ पर हम EMF सेम रहेगा, ओके। जो EMF एक रो के अक्रॉस होगा NE, उतना ही हर एक रो के अक्रॉस उतना ही सेम EMF होगा, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट कितना होगा फिर, NE इक्विवेलेंट मिल गया हमें। नाउ R इक्विवेलेंट निकालना है हमें। अब एक रो में R इक्विवेलेंट कितना होगा, n टाइम्स, बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो एक रो में nr होगा, ठीक है। सेकंड रो nr, थर्ड रो nr, अप टू mth रो तक कितना होगा, nr, ओके। नाउ दिस m रो आर कनेक्टेड पैरेलल, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा फिर, मतलब 1 upon R इक्विवेलेंट, ओके, इज इक्वल टू 1 upon nr plus 1 upon nr plus up to how many times, m times 1 upon nr, right students। तो 1 upon R equivalent is equal to m times रोज है ना यहाँ पर, तो m times 1 upon nr, तो R equivalent की वैल्यू क्या होगी, उसका रेसिप्रोकल nr डिवाइडेड बाय m, ओके। तो यहाँ पर देखिए R equivalent क्या है, उसका रेसिप्रोकल होगा nr डिवाइडेड बाय m। अब करंट के लिए फार्मूला
I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट की वैल्यू एन ई डिवाइडेड बाय कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पर ये हमें क्लोज करना है। एंड करंट, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड these are नेगेटिव टर्मिनल्स। तो करंट, टोटल करंट कितना होगा I that flows from positive to negative। ओके, और फिर से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल करंट हमें निकालना है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला होगा E इक्विवेलेंट एन ई डिवाइडेड बाय R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होगा एन आर डिवाइडेड बाय एम। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, n कॉमन निकालेंगे। ठीक है, देखिए n कॉमन निकालना है तो यहाँ पर डिवाइड बाय n करना होगा। यहाँ से n कॉमन हम इजीली निकाल सकते हैं, तो r बाय m रहेगा। तो n कॉमन जो निकाला है वो इस n के साथ कैंसिल हो सकता है। तो I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R बाय n प्लस R बाय m। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो जाता है। ओके, नाउ अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, एक रो में कितने सेल्स हैं n सेल्स, ऐसे कितने रोज हैं m रोज है। तो टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। ओके, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p इज इक्वल टू m इनटू n। ओके, अगर एक रो में 8 सेल्स है और ऐसे 6 रोज है तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स उस मिक्स कॉम्बिनेशन में कितने होंगे 48 सेल्स, राइट। ओके, अब फर्स्ट कंडीशन देखिए, यहां पर करंट मैक्सिमम कब होगा। ओके, I इज इक्वल टू I मैक्स इफ डिनोमिनेटर टर्म मिनिमम होगी, है ना। I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट। अगर ये डिनोमिनेटर का ब्रैकेट निग्लिजिबल हो जाता है या फिर अगर जीरो भी हो जाता है तो फिर करंट बहुत ज्यादा होगा, इनफिनिट होगा। E अपॉन जीरो मतलब इनफिनिट। ओके, तो इसका मतलब I is equal to I max if this denominator मतलब R by n plus small r by m is minimum। अगर वो जीरो भी हो जाता है तो करंट फिर इनफिनिट होगा, मैक्सिमम होगा वो। ओके, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू m, तो d by dm इन ब्रैकेट r by n plus r by small m तो वो जीरो होगा। ओके, मिनिमम मतलब कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। नो, अब यहाँ पर क्या करना है देखिए, r by n को हम m से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो अगर यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करते हैं तो m r होगा डिवाइडेड बाय m into n। m n मतलब क्या होगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स p, तो यहाँ पर p लिखा है, प्लस r by m इज इक्वल टू 0। ओके, अब विथ रेस्पेक्ट टू m हमें डेरिवेट करना है, इसलिए फिर यहाँ पर तो m है लेकिन यहाँ पर m नहीं, इसलिए ये एडजस्टमेंट किया। ओके, m से मल्टीप्लाई किया है और m से डिवाइड किया है, m r और m into n मतलब टोटल नंबर ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर p लिखा है प्लस r by m। अब इसको हम डेरिवेट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू m। देखिए m r by p, ओके, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज r by p। ओके, माइनस, अब r by m का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस r by m स्क्वायर। ओके, देखिए अब इस m को अगर ऊपर लाते हैं तो m का पावर क्या होगा -1, तो वहां पर बेसिक डेरिवेटिव फार्मूला यूज कर सकते हो, है ना। d by dx of x raised to n is equal to n times x raised to n -1। तो अब ये ऊपर आने के बाद उसका पावर क्या होगा -1 होगा, सो -1 into m raised to -1। ओके, तो माइनस m raised to -2 तो -1 अपॉन m स्क्वायर होगा, तो इसलिए माइनस r by m स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू 0। अब r डिवाइड बाय p मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, दिस इज m into n। तो p को फिर से यहाँ पर mn लिखना है हमें, r by p के जगह पर mn, ये इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा r by m स्क्वायर। अब एक m स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो r by n इज इक्वल टू r अपॉन m। ओके, स्मॉल r अपॉन m, ये कंडीशन हमें मिलती है फॉर मैक्सिमम करंट। ठीक है, r by n इज इक्वल टू स्मॉल r by m। अगर ये दोनों टर्म सेम हो जाते तो उनकी एडिशन क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब अगर ये 0 हो जाता है
तो करंट क्या होगा फिर मैक्सिमम, मतलब r बाई एन प्लस स्मॉल r बाई m की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। अगर वो जीरो होती है तो r मैक्सिमम होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर देखिए, अगर r बाई एन इज इक्वल टू स्मॉल r बाई m, ये कंडीशन लेते हैं हम, तो यहाँ पर I max की वैल्यू क्या होगी देखिए। ओके, ये यहाँ पर E अपॉन r बाई एन प्लस, अगर स्मॉल r बाई m को r बाई n लिखते हैं हम यहाँ पर r बाई n, तो r बाई n प्लस r बाई n क्या होगा, 2 टाइम्स r बाई n, 2 टाइम्स r बाई n, तो n ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होगा। सो I max इज इक्वल टू n e डिवाइड बाय 2r, या फिर इस स्टेप में हम कैपिटल R बाई n के जगह पर देखिए स्मॉल r बाई m रखते हैं, तो यहाँ पर 2 टाइम्स स्मॉल r बाई m होगा, और m ऊपर आने के बाद देखिए m e डिवाइडेड बाय 2r। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम करंट। ये दोनों इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेना है तो यहाँ पर n लेना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस तो यहाँ पर m आ जाएगा। Now in mixed grouping of cells, power generated across the load, मतलब external resistance कितना होगा, तो जनरल फॉर्मूला है power is equal to, this is capital P, this P stand for power, is equal to I square R, ये फॉर्मूला है ना। अगर हम यहाँ पर I की वैल्यू ये रखते हैं, I की वैल्यू अगर ये रखते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाएगा E square capital R divided by in bracket R by n plus small r by m bracket square। ओके, नाउ पावर मैक्सिमम कब होगा, जब करंट मैक्सिमम होगा, और करंट मैक्सिमम के लिए ये फार्मूला लेने हमें, अगर ये फार्मूला हम लेते मैक्सिमम करंट के लिए यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर e स्क्वायर डिवाइड बाय 2r स्क्वायर। ओके, और इस r के साथ यहाँ का r स्क्वायर, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला होगा n I max। देखिए P max is equal to I max square R, I max मतलब n square e square divided by 4r square होगा, 4r square and this r, तो यहाँ पर एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला तैयार होता है। फिर अगर हम I max वैल्यू ये लेते हैं, ओके, तो m square e square divided by 4r square, तो P max क्या होगा, I max square मतलब इसका स्क्वायर, m square e square divided by 4r square into this capital R। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ये पॉइंट्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये। ओके, तो हायर लेवल एमसीक्यूज यहाँ पर पूछ जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।